Good morning, students. Today we will work on lesson number 10, the pie and the tart, class 10th, special English. Okay. So we start, and you know that I am Ravindra Naguria from Sandipani Higher Secondary School, and today we are discussing on lesson number 10, the pie and the tart. So one thing I want to tell you, it is our lesson number 12 actually, but you know that due to the corona age, the government means MP board deducted or removed 6 lessons from your textbook. So lesson number 8, what is culture, is removed. Lesson number 11, mending wall, is also removed. Lesson number 15, journey of the Atlantic on a papyrus boat, is also removed. All the world is a stage, is also removed. Lesson number 16. And lesson number 17, the BET, is also removed. If I were you, lesson number 19 is also removed. So due to it, इस कारण से lesson number 10, now the pie and the tart. Clear? Now we start. The pie and the tart is a humorous story about Jean, Pierre, Gaultier and Marion. Okay? And then it is not too much useful for the students, because in the student age we should get some inspirational stories which could make or which can inspire us. So, but don't worry, it is given in the textbook, so we are reading this story. Only humor is there, there is no learning. Okay, so we start. The pie and the tart. Pie means a kind of samosa or kachori. Okay, जो in Western सोसाइटी में जो पाई जो होता है, एक तरह का डिश होता है जो हमारे समोसा या कचौरी की तरह होता है. टार्ट, TRT, टार्ट जो है वो एक समझ लीजिए आप जैम या चटनी उसको आप कह सकते हैं. तो हमारे लेसन का टाइटल है द पाई एंड द टार्ट. ओके, खाने से जुड़ी 2 चीज़ें हैं जिनको 2 पर्सन जिनका नाम है जीन एंड पीरे, वो उनको अचीव करना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं. They want to get the pie and the tart, and the whole story is revolving around it. सारी स्टोरी इसी टॉपिक पे घूमती है. गॉल्टियर इज़ अ बेकरी ऑनर. गॉल्टियर जो है बेकरी की शॉप का मालिक है. एंड मैरियन हिज वाइफ, और मैरियन जो है वो गॉल्टियर की वाइफ है. ओके, एंड दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू पेरिस, PARIS, you know, the capital of France. So I start. It is very lengthy story, but I will tell you in short, and will not leave any segment of the story. हम किसी इस स्टोरी का हम कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ेंगे. We will touch everything. So scene first. Jean and Pierre are moving or roaming, ROMING, roaming means भटकना, और wandering, WANDERING, wandering means भटकना. जीन और पीरे जो हैं वो भटक रहे थे पेरिस के रोड पर. देवर हंगरी, भूखे थे. देवर ठग, देवर लोफर और वेगाबॉन्ड्स. वो ठग थे, मीन्स उनका काम था लोगों को फूल बनाकर उनका सामान ले लेना या किसी को लूट लेना. ये जीन और पीरे दोनों का काम था. देवर अनसोशल एलिमेंट. इसलिए मैं कहा था कि दिस स्टोरी इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स, बट डोंट वरी, इट इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी, दैट्स ऑल. जीन और पीरे जो हैं वो 2 ठग हैं, वो है ना, लोफर हैं, मतलब सड़क पर भटकने वाले आवारा तत्व हैं, और उनका एक ही काम है कि वो मेहनत करके नहीं खाते हैं, बल्कि वो दूसरों से लूट कर या दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका सामान लूट लेते हैं. ओके, वंस दे वर सिटिंग ऑन द बेंच ऑफ द फुटपाथ ऑफ पेरिस. एक बार वो सुबह बैठे होते हैं पेरिस सिटी की
एक रोड के किनारे लगी हुई बेंच पर। एंड नियर देम देयर वॉज अ शॉप, अ बेकरी शॉप, एंड द ऑनर ऑफ द शॉप वॉज गोल्टियर। वो जहाँ बैठे होते हैं उसी के पास जस्ट एक बेकरी शॉप होती है, ठीक है, और उसका मालिक जो है, उसका ऑनर है गोल्टियर, ठीक। जिन और पीरे आर टॉकिंग अबाउट देयर सफरिंग, दे आर टू मच हंग्री। जिन और पीरे अपनी भूख के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ दिनों से एक दो दिन से उन्हें खाना नहीं मिला है, तो बहुत भूखे हैं। और साथ ही साथ देयर वाज कोल्ड एट द टाइम इन पेरिस, उस समय पेरिस में कोल्ड है, ठंड है। तो जिन और पीरे जो हैं वो ठंड के कारण भी परेशान हैं और भूख के कारण भी परेशान हैं। सो व्हेन दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, जिन एंड पीरे वर देयर। सो व्हाट हैपेंड? They were talking just nonsense, and there is nothing too important. Both are suffering from cold and hunger. Okay. So what happened? Jin and Pire saw the Gaultier's shop, bakery shop. So they decided to go there and to beg. BG beg means भीख मांगना। दोनों ने, जिन और पीरे ने पीछे पलट के देखा तो एक बेकरी शॉप थी। आपको पता है बेकरी शॉप पर खाने पीने का सामान मिलता है, केक्स है ना, बिस्किट्स etc। तो इन दोनों ने सोचा कि क्यों नहीं हम वहाँ पर जाकर वन बाय वन भीख मांग लेते हैं, बेक कर लेते हैं, बीज बेक कर लेते हैं, ताकि हमें कुछ खाने का सामान मिल जाए। ओके, सो पीरे वेंट देयर एंड ही बेग्ड, BEGD, बेग्ड मीन्स भीख मांगी। ही बेग्ड फ्रॉम गोल्टियर ऑन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर पीरे ने जाकर वहाँ पर भीख मांगी, है ना, खाने के लिए सामान मांगा। बट गोल्टियर वॉज अ रूड, RUD, रूड पर्सन, एंड ही डिनाइड। डिनाइड मीन्स DNID, डिनाइड मीन्स मना कर दिया। उसने मना कर दिया, किसने? गोल्टियर ने, और उसको पीरे को वहाँ से भगा दिया। ओके, इसके बाद जिन आता है। पहले कौन आया? पीरे। देन जिन कैम टू गोल्टियर शॉप। उसके बाद जिन आता है गोल्टियर की शॉप पर, वो भी ऑन द नेम ऑफ गॉड, ऑन द नेम ऑफ अल्लाह। ही वांटेड टू गेट समथिंग टू ईट, बट गोल्टियर डिनाइड हिम आल्सो, एंड ही आल्सो केम विदाउट एनीथिंग। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड? Both were sitting again on the bench which was near the bakery shop. Gaultier told Marian, Gaultier who is the bakery shop owner, and Marian is the wife of Gaultier. Gaultier told Marian that the mayor of the city, MAYOR, mayor means what? Mayor means Mahapur. You know that who is the Mahapur of Devas? This time this seat is vacant because the election is delayed, है ना। अभी हमारे देवास में महापौर नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं। बट व्हेन इट विल बी, देन ही विल बी इलेक्टेड, दैट पर्सन विल बी इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स। तो उस सिटी में भी एक मेयर थे, महापौर थे, जिन्होंने इनवाइट किया था कि इसको गोल्टियर को लंच के लिए। ओके, सो गोल्टियर इज टेलिंग टू मैरियन दैट आई एम इन्वाइटेड एट the mayor's house for lunch, so please do not make lunch for me. Okay, and Gaultier wanted to go to the mayor's house, so he told to Marian that I am going for the lunch at the mayor's house, and I will bring there the pie which I baked yesterday. गोल्टियर ने कहा कि मुझे लंच पर बुलाया है किसने? महापौर ने, मेयर ने, और मैं वहाँ जा रहा हूँ, और रात को जो मैंने पाई यानी एक बड़ा सा समोसा बनाया था बेकरी शॉप पर, मैं उसको अपने साथ ले जाऊँगा। ठीक है, बट मेरियन टोल्ड व्हाई आर यू टेकिंग द पाई विथ यू, बिकॉज इट इज़ नॉट a suitable thing for you.
द मेयर इज़ अ वेरी, है ना, हाई पर्सन एंड यू शुड गो देयर एम्प्टी हैंड। इफ़ यू आर गोइंग देयर विथ एनी इटेबल देन इट विल नॉट सूट यू। यदि तुम वहाँ मेयर के घर पे जा रहे हो ने और अपने ही हाथ में खाने पीने का सामान भी ले जा रहे हो तो ये सूटेबल नहीं लगेगा तुम्हें, तो इसलिए तुम पाई लेकर मत जाओ। गोल्टियर लाइक्ड दिस आइडिया, गोल्टियर को भी अच्छा लगा कि हाँ बात तो सही है। गोल्टियर ने कहा मेरियन से, डोंट वरी, आई विल सेंड समवन फ्रॉम द मेयर्स हाउस टू गेट द पाई। गोल्टियर ने कहा ठीक है, मैं पहले मेयर के घर जाता हूँ, फिर वहाँ से मैं किसी पर्सन को भेजूँगा, उनके किसी सर्वेंट को भेजूँगा पाई को लेने के लिए। ओके, सो मैरियन टोल्ड, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट पर्सन हु विल कम टू गेट द पाई। मैरियन ने कहा कि मैं कैसे उस व्यक्ति को पहचान पाऊंगी जो मुझसे पाई लेने के लिए आएगा। सो गोल्टियर टोल्ड, डोंट वरी, आई विल टेल हिम टू किस योर हैंड। मीन्स व्हेन द पर्सन विल कम देन आई विल टेल हिम दैट ही शुड कम टू माई शॉप एंड ही शुड कॉल यू, एंड व्हेन मैरियन विल कम आउटसाइड देन ही हैज़ टू किस हर हैंड। इट इज़ द कोड, इट इज़ द पासवर्ड। ओके, सो गोल्टियर टोल्ड, गोल्टियर ने कहा कि जिस भी व्यक्ति को मैं भेजूंगा वो आकर तुम्हारे हाथ को किस करेगा, ठीक है, तुम्हारी पाम पर, हथेली पर किस करेगा और तुम उसको वो केक दे देना, ठीक है। सो मैरियन वॉज रेडी। ओके, देन व्हाट हैपेंड, Jean and Pierre were sitting near on the bench and they overheard, उन्होंने दूर से सुन लिया, they overheard what was the password, that Marian will be kissed by a man and that man will get a pie, कि मैरियन के हाथ पर आकर एक व्यक्ति किस करेगा और उसको वो पाई मिल जाएगा। ये आइडिया या ये पासवर्ड किसको पता चल गया, जीन और पीरे को, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, नाउ आई रीड फ्रॉम हियर एंड देन आई विल टेल यू। ओके, पीरे केम, देन गोल्टियर वेंट टू द मेयर्स हाउस एंड देन पीरे केम टू मैरियन एंड he asked, Madam, Mr. Gaultier sent me to get the pie. When Marian came outside, Pierre kissed her hand and Marian thought that he is the right person because he is using the right password, right code, so she gave the pie to Pierre. अब देखिए, जब गोल्टियर वहाँ से चला जाता है तो जीन और पीरे ने यह बात सुन ली, तो पीरे आता है कुछ देर बाद और वो कहता है, मैडम मैरियन प्लीज़ बाहर आइए, मुझे सर ने भेजा है, गोल्टियर सर ने भेजा है, वो मेयर के हाउस पर बैठे हैं, खाना खाने के लिए वेट कर रहे हैं और उन्होंने मुझे आपसे पाई लेने के लिए भेजा है। मैरियन जब बाहर आती है तो वो उसके हाथ को किस करता है, कौन, पीरे, जो कि कोड वर्ड था या पासवर्ड था, ठीक है। मैरियन सोचती कि इसने मेरे हाथ को किस किया और यही मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जिस पर्सन को भेजूंगा वो आकर मेरे हाथ को किस करेगा, तो मैरियन ने उठाकर पाई उसको दे दिया। गॉट, तो हु कैम देयर, पीरे कैम देयर, पीरे आया वहाँ पर और वो पाई लेकर चला जाता है, ठीक है। नाउ पीरे एंड जिन आर सिटिंग टुगेदर, पीरे और जिन अब बैठे हैं साथ में और वो खाना चाहते हैं उस बड़े से पाई को, ठीक है, जो एक बड़ा सा बैग्ड समोसा है। एंड दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है कि चलो आज भी उनका काम हो गया, किसी को उन्होंने ठग लिया और आज उनको खाने को मिलेगा। बट बोथ वर वेरी ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी मीन्स लालची, बट दोनों ही बड़े लालची थे। जिन और पीरे जो हैं, पीरे कहता है कि जिन, जब मैं वहाँ पर गया था तो मैंने देखा कि पाई के बगल में एक टार्ट का जार रखा हुआ है, मतलब अचार की बरनी रखी हुई है, ठीक है, और मैंने उसे देखा, तो मैं चाहता हूँ कि हम उसको भी हासिल कर लें, जैसे हमने पाई को हासिल कर लिया है, तो एक बार तुम जाओ और
टार्ट लेके आ जाओ। ठीक है, सेम वे में। अब क्या होता है कि जिन आता है किसके पास, मैरिन के पास, और वो मैरिन को आवाज़ देता है और उससे कहता है कि जो गोल्टियर सर हैं वो मेयर के घर पर बैठे हैं और वेट कर रहे हैं खाने के लिए, और वो उन्होंने मुझे भेजा है और वो चाहते हैं कि टार्ट यानी एक तरह की चटनी है, एक तरह का अचार जो कि एक गिलास के जार में रखा था, वो आप मुझे दे दीजिए। मैरिन सोचती है कि ज़रूर मेरे हस्बैंड ने भेजा होगा, और मैरिन जो है वो उस टार्ट को देना चाहती है। ठीक है, नाउ आई विल रीड। ओके, तो दोनों प्लान करते हैं जिन और पीरे कि वो टार्ट को ले जाते हैं यहाँ से। अब पीरे तो चूँकि वहाँ पर आ चुका था फर्स्ट टाइम, तो अब जिन को आना था। जिन जो है वहाँ पर आने के लिए तैयार होता है। ठीक है, वो प्लानिंग कर रहा है कि क्या मैं बोलूँगा वहाँ पर आकर। तभी होता है ये कि गोल्टियर जो है, मिस्टर गोल्टियर जो है वो रिटर्न हो जाते हैं अपने घर पर। ठीक है, मैरिन जब गोल्टियर को देखती हैं तो मैरिन गोल्टियर को देखकर क्या हो जाती हैं, सरप्राइज हो जाती हैं कि तुम तो वहाँ खाना खाने गए थे मेयर के हाउस पर, एंड यू आर कमिंग बैक, तुम वापस आ गए, क्यों? गोल्टियर ने कहा, द मेयर इज़ वेरी केयरलेस पर्सन, ही इन्वाइटेड मी बट ही वॉज नॉट देयर। मैरिन गोल्टियर ने कहा मैरिन को कि मेयर ने मुझे इनवाइट किया था, जब मैं वहाँ गया तो वो तो था ही नहीं वहाँ पर, घर पे ताला लगा था, तो मुझे वापस आना पड़ा भूखा। नाउ आई वांट टू ईट दैट पाई, अब तो मुझे पाई खाना पड़ेगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। कौन ने बोला? गोल्टियर ने। किससे? मैरियन ने। तो मैरियन ने कहा कि पाई कहाँ से दूँ मैं तुम्हें, तुमने तो एक पर्सन को भेजा था, एक बंदे को भेजा था, वो मुझसे पाई ले जा चुका है ना। ही गोट द पाई फ्रॉम मी एंड ही किस्ड माई हैंड, सो मैंने उसे दे दिया, सो आई गेव हिम द पाई। गोल्टियर गोट एंग्री, नो नो नो, आई हैव नॉट सेंट एनीवन, मैंने किसी को नहीं भेजा था, तुमने किसको दे दिया, क्यों दे दिया, मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा था। दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं इसी पर झगड़ रहे होते हैं। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, okay, now Jin is coming to गोल्टियर्स हाउस टू गेट द टार्ट। अब जिन आता है किसके पास? गोल्टियर के घर पर, और उसके पास वही आइडिया है कि मैडम मिस्टर गोल्टियर जो हैं वो मेयर के हाउस पर खाना खाने के लिए गए हैं और मैं आपसे पाई लेने के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे मैं आपसे टार्ट लेने के लिए आया हूँ और टार्ट उन्होंने मंगवाया है, तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। ये आइडिया सोचकर कौन आ रहा है? जिन। ठीक है, so Jin came there and he called Marion. Okay, Marion comes to the door. Marion, and what do you want? Marion ने पूछा क्या चाहिए आपको? Jin, Mr. Gaultier has sent me lady. He finds that L pie is not large enough to go round. He wants the cranberry tart, which he says is on the kitchen shelf. And oh yes, I am to kiss your hand. Then you will know it's me. Jin ने कहा कि मैडम मुझे मिस्टर गोल्टियर ने भेजा है टार्ट को लेने के लिए और उन्होंने मुझे आपके हाथ को किस करने के लिए कहा है। ठीक है, देन व्हाट हैपन, मैरियन, ही वांट्स द क्रैनबेरी टार्ट, डज ही, वेरी वेल इफ़ यू विल वेट देयर। मैरियन ने कहा कि अच्छा मिस्टर गोल्टियर को टार्ट चाहिए, तुम जरा ठहरो में लेके आती हूँ। मैरियन अंदर जाती है और मैरियन कॉल करती है किसको? गोल्टियर को बुला के लाती है कि गोल्टियर देखो इस तरह का एक बंदा था, वो मुझसे पाई लेकर गया। गोल्टियर आते ही किसको पकड़ लेता है? जिन को पकड़ लेता है और पीटने लगता है कि यू आर द ठग, तुमने हमारा पाई ले लिया, हमें
है ना, हमें चीट किया। जिन कहता है स्टॉप बीटिंग, अब जिन को मार पड़ रही है, कौन मार रहा है? गोल्टियर। जिन जो है कहता है कि मत मारो मुझे, मत मारो, है ना। आई वॉज नॉट, मैं नहीं था, मतलब मैं तुम्हारा पाई लेकर नहीं गया हूँ। इट वॉज द, ही वॉज द अदर पर्सन, वो दूसरा था। आपको पता है कि पहले नंबर पे पाई लेने के लिए कौन आया था? पीरे, जो कि सक्सेसफुली उसको लेके भी गया था। तो जिन ने कहा कि आपका पाई लेने में नहीं आया था, वो तो कोई दूसरा था। ठीक है, ओके। देन व्हाट हैपन? एंड गोल्टियर, एंड वेयर इज ही नाउ? जिन, नॉट वेरी अवे, आई विल गो एंड गेट हिम। गोल्टियर, यू वुड बेटर एंड सी हियर, इफ यू आर नॉट बैक विद द पाई आई विल हैव यू बोथ हैंग्ड फॉर थिविंग। जिन को पीटा किसने? गोल्टियर ने, कहा कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है जो मेरा पाई लेके गया? तो जिन ने कहा कि वो ज़्यादा दूर नहीं है और मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है, गोल्टियर ने कहा कि यू वुड बेटर एंड सी हियर, इफ़ यू आर नॉट बैक विद द पाई आई विल हैव यू बोथ हैंग्ड फॉर थिविंग। गोल्टियर ने धमकी दी किसको? जिन को, कि यदि तुम उस बंदे को जिसका नाम पीरे है, जो मेरा पाई लेके गया है, पाई के साथ लेकर नहीं आए, तो मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगा चोरी करने के इल्ज़ाम में। पीरे जो है बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि जिन जो है वो टाट लेके आएगा। दोनों बातें करते हैं। जिन, नॉट एट ऑल, शी सेज, शी कैन नॉट गिव द टाट टू जस्ट एनी वन, इट मस्ट बी द सेम मैसेंजर हु केम फ्रॉम द पाई or none at all. I kissed her hand till it was all sticky, but she would not budge an inch. जिन जो था उसने एक बहाना बनाया, किससे? पीरे से। जिन ने कहा कि जो मैडम मेरियन हैं वो कह रही हैं कि टाट वो मुझे अकेले को नहीं देंगी, बल्कि वो टाट जब देंगी जब जो बंदा पाई लेके गया था वो भी साथ में आएगा। तो पीरे जो है वो जिन की बातों में आ जाता है। अब जिन और पीरे दोनों ही आ जाते हैं किसके घर पर? मेरियन के घर पर। और यही प्लान किसका था? जिन का, क्योंकि जिन को फोर्स किया था किसने? गोल्टियर ने। कि अगर गोल्टियर ने कहा था कि यदि तुम जो बंदा मेरे से पाई लेकर गया है ना, अगर उसको तुम लेके यहाँ पर नहीं लौटे तो मैं कंप्लेन करूँगा तुम्हारी और तुम्हें फांसी हो जाएगी, फांसी टंगवा दूंगा मैं चोरी के जुर्म में। तो इस कारण से प्रेशर में आ जाता है कौन? जिन जाता है पीरे के पास और कहता है कि वो मैडम जो है ना मेरियन, वो मुझे अकेले को टाट नहीं दे रही हैं। वो कह रही हैं कि पहले उस बंदे को लेके आओ जो पाई लेकर गया था, तो चलो मेरे साथ, हम दोनों चलते हैं और हमको टाट मिल जाएगा, फिर हम बड़े आराम से खाएंगे। अब दोनों आ गए कहाँ पर? जिन और पीरे किसके पास? गोल्टियर के घर पर। ओके, पीरे, लिव, गोल्टियर, आर यू द डॉग हु टुक अवे माई पाई? अब गोल्टियर ने जैसे ही पीरे को देखा तो पीरे को उसने पीटना शुरू कर दिया। किसने? गोल्टियर ने। तो तुम वो हो जिसने मेरा पाई ले गया, है ना, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत और स्मार्ट हो, तुमने हमें चीट किया। पीरे, लीव गो मी एंड आई विल एक्सप्लेन यू। यू सी सर, इट वॉज दिस वे, आई ओवरहर्ड यू टेलिंग योर वाइफ दैट यू वांटेड अ मैसेंजर, सो आई प्रेजेंटेड। पीरे ने अपनी गलती मानी और कहा कि सर, उस वक्त जब आप कह रहे थे अपनी वाइफ से कि जो भी मैसेंजर, जो भी पर्सन आएगा पाई को लेने के लिए, वो तुम्हारे हाथ को किस करेगा, यह बात मैंने सुन ली थी और मैंने इस प्लान को, मतलब मैंने उस बात को रिपीट किया, है ना, उस पासवर्ड को मैंने यूज़ किया और मैं आपका पाई ले गया। ठीक है, सो आई प्रेजेंट माई सेल्फ टू मैडम, शी गेव मी द पाई एंड आई कैरीड इट स्ट्रेट टू द मेयर्स हाउस। पीरे ने एक और बहाना बनाया, साथ में ये बात जोड़ी। पीरे ने कहा कि सर, मैं आपका पाई जो है वो ले गया था कहाँ पर? मेयर के घर पर। गोल्टियर, आई सी एंड आई सपोज ही वॉज रिलेटेड टू सी यू। गोल्टियर कहता है, गोल्टियर, आई सी एंड आई सपोज ही वॉज रिलेटेड टू सी यू। गोल्टियर ने कहा, अच्छा फिर तो मेयर तुमको देखकर बहुत खुश हुआ होगा। पीरे, ही कुडंट फाइंड वर्ड्स इनफ टू थैंक मी। पीरे ने कहा कि मेयर जो है उनके पास शब्द नहीं थे मुझे धन्यवाद देने के लिए। गोल्टियर, यू आर अ लायर, द मेयर इज़ आउट। गोल्टियर ने कहा, पीरे तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि मेयर जो है वो तो उसके घर पर था ही नहीं। पीरे, सर, दैट इज़ वेयर यू आर रॉन्ग, ही वॉज आउट बट ही इज़ home again. He returned just after you left. He was most
grateful for the pie and he is expecting your honor to dinner. He said he hoped you wouldn't keep him waiting. पीरे ने फिर से एक बहाना बनाया और कहा कि सर नहीं, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। मेयर जो थे जब आप गए तब घर पे नहीं थे, अब वो घर आ चुके हैं। जब उन्होंने घर पर मेरे द्वारा ले जाया गया पाई देखा तो खुश हो गए। उन्होंने कहा कि जाकर भेजो किसको, गॉल्टियर को, मैं उनके साथ लंच करना चाहता हूँ। गॉल्टियर अब पीरे की बातों में आ जाता है, ठीक है। अब गॉल्टियर जो है वो फूल, FWL फूल बन जाता है। गॉल्टियर वेल सो दैट वाज इट एंड आई थॉट he had forgotten all about it. See here, now run back to his worship and say I shall be with him in 5 minutes. गॉल्टियर कहता है अच्छा, मतलब पीरे जो कह रहा है उसकी बात पर भरोसा कर लेता है कौन, गॉल्टियर। और गॉल्टियर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो जाके जल्दी से बोलो किसको, मेयर को, कि मैं उनके साथ लंच करने के लिए आ रहा हूँ, वो मेरा वेट करें, 5 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। पीरे वेरी गुड सर एंड द टार्ट। पीरे ने कहा बिल्कुल सर, और टार्ट का क्या होगा, क्या टार्ट भी ले चलना है वहाँ। गॉल्टियर ओ यस द टार्ट आई विल गेट इट। लो ये टार्ट की जार को भी पकड़ो और इसको भी वहाँ पर ले चलो केयरफुली। ओके, गॉल्टियर गोज बैक इनटू द शॉप कॉलिंग मैरिन प्रेजेंटली एंटर जीन ही सीज पीरे होल्डिंग अलोफ्ट द टार्ट। गॉल्टियर अपने घर में जाता है, अपनी वाइफ को कहता है कि मैं मेयर के हाउस पर जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि मेयर जो हैं वो वापस आ चुके हैं। और पीरे के हाथ में टार्ट की जो जार होती है, ग्लास की जार, वो आ जाती है और उनके पास पाई तो पहले से था ही। अब गॉल्टियर अपने घर में अपनी वाइफ से बात कर रहा है और इतने में जीन और पीरे जो हैं वो उस टार्ट को लेकर चले जाते हैं और उसके बाद वो दोनों द पाई एंड द टार्ट दोनों का एंजॉय करते हैं। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि जीन और पीरे देयर वर 2 thugs ऑन द रोड ऑफ पेरिस एंड अल्टीमेटली दे चीटेड गॉल्टियर फैमिली, है ना। शुरू में तो हमें लगता है कि गॉल्टियर जो है वो चीट होने से बच जाता है, लेकिन लास्ट में गॉल्टियर जो है पीरे की बातों पर फिर से ट्रस्ट कर लेता है, यकीन कर लेता है और वह चीटेड हो जाता है और उसका टार्ट भी चला जाता है। उसका पाई तो पहले ही वो लोग ले गए थे। सो इट वॉज द स्टोरी। थैंक यू।